हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, यानी यहाँ पर जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो हमारा क्लास 10वीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और उन क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और हर बात को जो है क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर बात की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और कुछ क्वेश्चनों का जो यहाँ महत्व रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, heredity and evolution. That's an important chapter here, class 10 CBSE NCERT science and technology book here. That's important here. But next question arrive here, that's important. What is the RNA, and write the structure function of RNA. You know that today discuss for here RNA structure and function. One by one explain on this topic. First of all here, what is a RNA? You know that RNA is important, and full form is mostly important here. The full form is RNA is a ribonucleic acid. Ribonucleic acid that help in the synthesis of protein. There is synthesis of the protein in our body. You know that RNA is most important structure here. They help in the synthesis of protein in our body, and this nucleic acid is responsible for a production of new cells in the human body. That's important. This nucleic acid is responsible for the production of new cells in human body. It is usually obtained from the DNA molecules. That's important. It is usually obtained the DNA molecules. RNA is a part of DNA. Show their picture, this clear your mind. But next, but RNA resemble the same as that of DNA. RNA resemble the same as that of DNA. The only difference began that it has a single strand, unlike the DNA which has two strands, and it is a consist on the only single ribose sugar molecules in it. That's important. That's consist on only single ribose sugar molecules in it, or hence it's a name of ribonucleic acid. RNA is also referred to as an enzyme, as its help in the process of chemical reaction in the body. Know that. Let's see diagram here. You know that on your screen there is a most important here, one side of DNA structure and other side is RNA. You understand there is a part of different, but I remember that there is a part of same here. The RNA is a here ribonucleic acid is a adenine, uracil and cytosine,
and guanine. That's important here, part here. But DNA here, deoxyribonucleic acid, they're attached with here or thylamines, adenines, and guanines and cytosine. That's attached here. You know that of helical structure on your screen that is attached by the CGAT. CGAT. But other side RNA only single. There is AUG. That is single. Why the single? Let's see other picture here. On your screen, there's a most important picture here. You know that clear your mind. The DNA here, RNA here part of DNA. You know that they're attached to each other, but upper side is separate. The DNA has the same but two helical structure, but other side is a one part of RNA. That's a part of DNA. That's important picture here. And also there's a replication. There are DNA and RNA translation of the protein. There is a replication. Replication is the most important here. Replication here, transcription and resolve. Transcriptions here, a translation here of the protein. The RNA DNA is a make a protein. That's important diagram for here. Let's see function of RNA. The ribonucleic acid RNA, which are mainly composed of nucleic acid, are involved in the variety of function within the cells and are found in all living organisms, including bacteria, virus, plants, and animal. You know that is important here. The variety of function within the cells and found in all living organisms. RNA found all living organisms, including bacteria, virus, plants, animal. The all living organisms here. And this nucleic acid function as the structural molecules in the cell organelles and are also involved in the catalyst of biochemical reaction here. That's important. The different types of RNA are involved in the various cellular process. Let's see. First of all here, facilitated of transcription of DNA into the protein. That's important. Also shown in this picture here, facilitated their translations of DNA into protein and function as the adapter molecules in protein synthesis and serve as a messenger between the DNA and the ribosome, and they are a carrier of the genetic information in all living cell and promotes the ribosome to be choose the right amino acid which is required in the build up the new protein in the body. That's important functions here. The next here, types of RNA. That's important types of RNA here. You know that first here types tRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, and third here messenger RNA. You know that three types of RNA here. First of all here transfer RNA, the tRNA. The transfer RNA is held responsible for the choosing the correct protein. That is choosing the correct protein or the amino acid and required by the body in turn helping to the ribosome. That's important transfer RNA here. And ribosomal RNA means rRNA here. There's a functions here in all living cell. The ribosomal RNA play a fundamental role in the synthesis and translation of the mRNA into the protein. That's important here. The ribosomal RNA is all living cells present here. The ribosomal RNA play as a fundamental role in their synthesis and translations of mRNA into proteins. And the next here, messenger RNA. Messenger RNA is the mRNA. That's important. The mRNA play a vital role in the process of transcriptions of during their protein synthesis process. That's important here. Messenger RNA play a vital role in process of
transcriptions of during their protein synthesis process here. Not that important here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं CBSE NCERT साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आरएनए क्या है और आरएनए का संरचना और कार्यप्रणाली को हमने यहाँ पर उजागर करना है, विस्तार पूर्वक चर्चा करना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हमने आरएनए के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि आरएनए को कहते क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। आरएनए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। यानी आरएनए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है। और यह न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिका के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, आपके शरीर में नए कोशिका का बनना, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड जो है मानव शरीर में कोशिका उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये आरएनए का एक महत्वपूर्ण वर्क फंक्शन है। और यह आमतौर पर डीएनए अणु से प्राप्त होती है। यानी जो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड आती है जो नए कोशिका के उत्पादन में जिम्मेदार होती है, ये जर्नल से देखा जाए तो ये अणु हमें आरएनए से प्राप्त होती है। यानी आरएनए ही हमें जो है ये न्यूक्लिक एसिड देती है, जिसके कारण जो है नई कोशिका का उत्पादन होता है। देखा जाए तो आरएनए और डीएनए के सामान्य ही दिखाई देता है। यानी आरएनए और डीएनए में आप काफ़ी फर्क नहीं कर सकोगे, आरएनए डीएनए एक सामान्य ही दिखाई देता है। अंतर केवल इतना है कि डीएनए के विपरीत इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। जैसे कि आप जो प्रीव्यू क्वेश्चन हमने किया है उसमें आपने देखा होगा, इसमें जो है 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डीएनए में 2 स्ट्रक्चर से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आरएनए की बात करें तो आरएनए सिर्फ एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और उसमें केवल एक ही राइबोसोम शर्करा अणु होते हैं। यानी देखा जाए तो आरएनए में जर्नल सी बात है कि राइबोस जो है शर्करा अणु होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल यहाँ निभा रहे होते हैं। इसलिए इसका नाम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड से हम जानते हैं। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है। यानी आरएनए को आप एक एंजाइम भी कह सकती हो। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यह शरीर में रासायनिक प्रक्रिया में मदद करता है। यानी जितने भी रासायनिक हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होते हैं, इसमें जो है आरएनए का एक महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। इसलिए आप इसको एंजाइम के रूप में भी समझ सकते हो। और समझना है तो आपको आगे चल के जो है डायग्राम को देखना है, और डायग्राम में हम सभी बातों को जो है आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको जो है माइंड क्लैरिटी के साथ आगे एग्ज़ाम की तरफ बढ़े। चलिए देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पर आप साफ शब्दों में देख सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर एक तरफ आरएनए है तो दूसरा तरफ डीएनए है, और आप देख सकते हो कि डीएनए जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 जो है जुड़े होते हैं आपस में, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये अटैच जो होता है एडेनोसिन, थाइमाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये 4 चीज़ों से अटैच होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखा जाए तो आरएनए किस प्रकार इससे अलग है। आरएनए आप देख रहे होगे कि इसमें सिर्फ एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर है, 2 नहीं है। जैसे डीएनए में था 2, उसमें नहीं है, इसमें 1 है। और यहाँ पर एक फर्क और आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो थाइमाइन्स नहीं है इसमें, ये में एडेनोसिन दिख रहा होगा आपको, साइटोसिन भी दिख रहा होगा, गुआनिन भी दिख रहा होगा, लेकिन जर्नल सी बात है इसमें थाइमाइन नहीं दिखेगा, उसके जगह पर आपको यूरेसिल दिखेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको AU जो है G नज़र आ रहा होगा, और साथ में C भी आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप डीएनए स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ A जो है T से ज्वाइंट हो रखा है, और C जो है G के साथ ज्वाइंट हो रखा है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए है। अगर आगे आप समझोगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ मैंने कि यहाँ पर ये डीएनए देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा नीचे से तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, लेकिन डीएनए जो है अलग होके अलग स्ट्रक्चर बना दिया है। यानी देखा जाए तो आरएनए सेपरेट हो गया है, अलग हो गया है, और डीएनए ऊपर देखिएगा तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर आपको समझ के लिए है। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों मिल के आगे क्या कारनामा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्या, दोनों मिल के क्या करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए और आरएनए मिल के क्या किया है। ये दोनों ने मिल के प्रोटीन का निर्माण किया। कहते हैं इंसान का जो संरचना तैयार हुआ है प्रोटीन से हुआ है, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये ज़रूरी भी है। आपको बता दूं कि ये काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर एप्लीकेशन जो नज़र आ रहा है, दिखाया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन दिख रहा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी दिख रहे होंगे। तो ये मिलके जो है ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन का, यानी डीएनए मिलके आरएनए मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर मान लीजिए डीएनए नहीं मिलता है तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ संभव नहीं हो सकता। इसलिए डीएनए आरएनए का बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कि ये दोनों मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और डीएनए जो है आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए जो है डीएनए का निर्माण करता है, और ये दोनों मिलके जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है एग्जाम व्यू से, और आपके लिए समझने के लिए भी ये बहुत ही पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं हम फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या दर्शाती है, चलिए देखने के बाद ही पता लगेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आरएनए के कार्यविधि पे हम आ गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा। हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, काफ़ी महत्व था। अब डीएनए की कार्य प्रणाली पे भी अगर नज़र डाल लें तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है एक आरएनए जो मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यानी देखा जाए तो आरएनए किससे बना होता है, पूरी तरह से न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, जो कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार कार्य में शामिल होता है। और ये बैक्टीरिया, वायरस, पौधे, जानवरों सहित सभी जीवों में पाया जाता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, सब में आरएनए पाया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, पौधे हो, जानवर हो, सब में जो है जीवित जितने भी जीवित प्राणी है उस सब में जो है आरएनए पाया जाता है। और यह न्यूक्लिक एसिड कोशिका अंगक में एक संरचनात्मक अणु के रूप में कार्य करता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है कोशिका के अंदर एक संरचनात्मक अणु के रूप में कार्य करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरण में भी शामिल होता है। यानी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है उसके उत्प्रेरण में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए आगे हम इसके कार्य के बारे में, तो विभिन्न प्रकार के आरएनए विभिन्न सेलुलर कोशिकाओं में शामिल होते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। पहली बात तो यही आता है कि डीएनए के प्रोटीन में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना। आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली यहाँ पर नज़र आता है कि आरएनए जो होता है वो डीएनए के प्रोटीन में अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन कार्य करता है। यानी आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करता है। कहते हैं डीएनए और आरएनए मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेंटर्स अणु के रूप में ये कार्य करता है। यानी आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर अणु के रूप में ये कार्यरत होता है। देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर के अणु के रूप में कार्य करता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि प्रोटीन संश्लेषण में एक एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। और इवन देखें तो डीएनए और राइबोसोम के बीच ये दूत के रूप में कार्य करते हैं। यानी डीएनए और राइबोसोम के बीच ये दूत की तरह कार्य करते हैं। मतलब इसका यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी मैसेंजर का कार्य करते हैं। और ये मैसेंजर का काम यहाँ
डीएनए में और राइबोसोम में आरएनए का काम होता है कि डीएनए से राइबोसोम तक जो मैसेज पहुंचाता है वो आरएनए होता है, और आरएनए यहाँ पर दूध की तरह कार्य कर रहा है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के वाहक है। कोई भी जीव हो, इसमें आनुवांशिकता जो उन्हें प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब जो काम होता है आरएनए का काम होता है कि आरएनए सभी जीवों में, कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के वाहक होता है, पहुंचाता है, ट्रांसफार्मर होता है। देखा जाए तो राइबोसोम को सही अमीनो अम्ल चुनने के लिए बढ़ावा भी देता है, जो शरीर में नए प्रोटीन के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी राइबोसोम सही अमीनो एसिड चुनने के लिए बढ़ावा देता है, जो शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ आरएनए का देखिए कितना महत्वपूर्ण उपयोग हमारे समक्ष आया है। यदि आगे हम बात करें इसके प्रकार की, तो आरएनए के प्रकार देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसका जो है ये ट्रांसफर आरएनए होता है, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम पहला को हम ट्रांसफ़र को हम स्थानांतरण आरएनए भी कह सकते हैं। दूसरा जो होगा यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होगा, दूसरा जो होगा मैसेंजर आरएनए, जो कि एक दूध की तरह कार्य करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो पहले जो आरएनए होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल टी आरएनए हम लिखते हैं, और इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है कि स्थानांतरण आरएनए को सही प्रोटीन या शरीर के आवश्यक अमीनो एसिड चुनने के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो चुनता है वो कहीं ना कहीं आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ये जो है सही अमीनो चुनने में जो है मदद करता है। दूसरा आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन में एमआरएनए के संश्लेषण और अनुवाद में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यानी देखा जाए तो राइबोसोमल आरएनए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आरएनए में। उसके पश्चात देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए, कहते हैं आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान देता है। कहते हैं एमआरएनए जो है प्रतिलेखन की प्रक्रिया में या प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और ये भूमिका काफ़ी मान्य होती है और महत्वपूर्ण भी होता है। तो यहाँ पर हमने जो है आरएनए के विस्तार पूर्वक चर्चा किया, इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसकी परिभाषा को देखा, इसके जो है हम कार्यप्रणाली को देखा। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से रहता है। यहाँ पर कोई भी बात जो है मैंने यहाँ छोड़ा नहीं, जितना हो सका 10वीं क्लास के अंतर्गत हमने बताने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसको एग्ज़ाम तक याद करने की कोशिश करते रहिए, बार बार वीडियो देखते रहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर हो सकता है। ठीक है, और जब भी वीडियो देखिए स्किप करके कभी ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी जो है आपकी वीडियो की गुणवत्ता समझ में आएगी, और ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। आपको शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप पर लगा देना है।